Hello students, how are you all? I hope you all are doing well. Students, in today's video we'll study about the vitamin D. आज की जो वीडियो है उसमें हम बात करेंगे विटामिन बी के बारे में. What are the food sources in which vitamin D is found? What is the deficiency of vitamin D? Which disease is caused due to the deficiency of vitamin D in our food? ठीक है. So beta, as you know that in our previous classes we have discussed about the 5 types of nutrients found in our food. हमने इससे पहले की जो क्लासेस है उसमें डिस्कस कर लिया है कि कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स है जो हमारे फूड में पाए जाते हैं. The names of those nutrients are carbohydrates, proteins, fats, minerals and last is vitamins. About carbohydrates, proteins, fats and minerals we have discussed in our previous videos. Now today in this video we'll discuss about the vitamin D. We have discussed about the vitamin A also in our previous video. ठीक है? So let's talk about vitamin B first. So vitamin B is found in which food sources? ऐसे कौन-कौन से food sources हैं जिसमें vitamin B पाया जाता है? कौन-कौन से food sources है जो vitamin B में rich होते हैं? So what are the food sources in which vitamin B is found? The first food source is meat, especially organ meat like liver. ठीक है, पहला food source जिसमें vitamin B पाया जाता है वो क्या है? Meat. स्पेशली ऑर्गन मीट होना चाहिए. किस प्रकार का मीट होना चाहिए? ऑर्गन मीट होना चाहिए. एंड विच टाइप ऑफ ऑर्गन? कौन सा ऑर्गन होना चाहिए बेटा? लिवर. ठीक है, दिस लिवर इज रिच इन विटामिन बी. ये जो लिवर है इसमें भर भर के विटामिन बी की मात्रा पाई जाती है. ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द अदर फूड सोर्स. दूसरा फूड सोर्स क्या है बेटा? सम टाइप्स ऑफ फिशेस लाइक ट्यूना फिशेस एंड सैल्मन फिशेस, These are also rich in vitamin B. ठीक है, तो कुछ प्रकार की फिशेस होती हैं जैसे कि ट्यूना फिशेस और कौन सी फिश है? सैल्मन फिश. वो भी किसमें रिच होती है? विटामिन बी में. ट्यूना एंड सैल्मन फिश. These two types of fish are rich in vitamin B. ठीक है. What is the other food product which is rich in vitamin B? अगला फूड प्रोडक्ट कौन सा है? ठीक है, सो अगला फूड प्रोडक्ट कौन सा है बच्चे? अगला फूड प्रोडक्ट है आपका डेयरी प्रोडक्ट्स. ठीक है, मिल्क और मिल्क से बनने वाले जो प्रोडक्ट्स होते हैं, दीज प्रोडक्ट्स आर आल्सो रिच इन विटामिन बी. सो नेक्स्ट प्रोडक्ट इज व्हाट? डेयरी प्रोडक्ट. ठीक है, डेयरी प्रोडक्ट्स आर आल्सो रिच इन विटामिन बी. जो डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं ये भी किसमें रिच होते हैं? विटामिन बी में. सो व्हाट आर डेयरी प्रोडक्ट्स? मिल्क, योगर्ट, चीज. ये 3 डेयरी प्रोडक्ट्स हैं जो कि विटामिन बी में ज्यादा होते हैं. ठीक है, सो स्पेशली 3 डेयरी प्रोडक्ट्स आर रिच इन विटामिन बी. मिल्क, चीज एंड योगर्ट. Milk, cheese and yogurt. These dairy products are rich in vitamin B. Next food product is what which is rich in vitamin B. So next food product is eggs. ठीक है, जो अंडे होते हैं these are also rich in vitamin B. Eggs are also rich in vitamin B. What is the next food product? अगला food product कौन सा है बेटा? Green leafy vegetables. जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं these are also rich in green leafy vegetables. Green leafy vegetables are also rich in vitamin B. ठीक है, what is the next food product which is rich in vitamin B? अगला food product क्या होना चाहिए? So next food product is some types of nuts like almonds. ठीक है, बादाम. These are also rich in vitamin B. ठीक है, तो some types of nuts like बादाम या फिर almonds, these are rich in vitamin B. So almond is also rich in vitamin B. What is the other food product? अगला food product क्या होना चाहिए? If I talk about fruits which are rich in vitamin B, so bananas and avocados are rich in vitamin B. So banana, ठीक है, अगर हम fruits की बात करें तो कौन कौन से fruits जो होते हैं वो vitamin B में rich होते हैं. तो banana and avocado. ठीक है, banana and avocado are rich in which type of vitamin? Correct, vitamin B. So these are the food products which are rich in vitamin B. Now let's talk about the disease which is
caused due to the lack of vitamin B. अगर हमारे शरीर में विटामिन बी की कमी हो जाए, विटामिन बी की डेफिशिएंसी हो जाए, तो हमारे शरीर में कौन सी बीमारी होगी? करेक्ट, बेरी-बेरी. ठीक है. सो द डिजीज विच इज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन बी इज बेरी-बेरी. व्हाट इज द नेम ऑफ डिजीज that is caused due to the lack of vitamin B? The name of the disease is बेरी-बेरी. ठीक है. बेरी-बेरी वो डिजीज है जो किसकी कमी से होती है? कौन से विटामिन की कमी से होती है? करेक्ट. This disease is caused due to the lack of vitamin B in our food. अगर हम अपने खाने में विटामिन बी की मात्रा नहीं ले रहे हैं, कम ले रहे हैं, तो हमें कौन सा रोग हो जाएगा? करेक्ट. We will suffer from a disease named as बेरी-बेरी. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ बेरी-बेरी. अब ये जो बेरी-बेरी रोग होता है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं. हम कैसे पहचाने कि हमें बेरी-बेरी नामक रोग हो गया है? तो लेट्स डिस्कस अबाउट द सिम्टम्स ऑफ बेरी-बेरी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब द बोर्ड. ठीक है. तो बेरी-बेरी के क्या क्या सिम्टम्स होने चाहिए, क्या क्या सिम्टम्स हैं, कौन कौन से लक्षण हैं जो हमारी बॉडी शो करने लग जाती है इन दी डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन बी. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आवर नर्वस सिस्टम बिकम्स स्लो. अगर हमें बेरी-बेरी नामक डिजीज हो जाएगी तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो स्लो हो जाएगा, उसकी फंक्शनिंग स्लो हो जाएगी. सो द फंक्शनिंग सिम्टम क्या हो जाएगा हमारा बेरी-बेरी का? सिम्टम, व्हाट इज द सिम्टम ऑफ बेरी-बेरी? क्या सिम्टम होगा, क्या लक्षण होगा बेरी-बेरी का बेटा? सो द फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम विल बिकम स्लो. द फंक्शनिंग ऑफ आवर नर्वस सिस्टम बिकम्स स्लो. ठीक है. जो हमारा नर्वस सिस्टम है उसकी जो फंक्शनिंग होगी वो कैसी हो जाएगी? स्लो हो जाएगी, डाउन चली जाएगी. इन दी डिजीज ऑफ बेरी-बेरी, जो डिजीज होती है बेरी-बेरी उस केस में. ठीक है. अब ये नर्वस सिस्टम क्या होता है? नर्वस सिस्टम, व्हाट इज नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम कहते किसे हैं? सो बेटा एज वी हैव स्टडीड अर्लियर दैट आवर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आवर नर्व्स, ये सारे के सारे कलेक्टिवली क्या बना देते हैं? हमारा नर्वस सिस्टम. आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ आवर ब्रेन, आवर स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. दीज ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स कलेक्टिवली मेक आवर नर्वस सिस्टम. ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं? हमारा नर्वस सिस्टम. ठीक है. सो आवर नर्वस सिस्टम इज मेड अप ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स. जितनी भी नर्व्स हमारी बॉडी में पाई जाती है, इन तीनों से मिलकर हमारा क्या बन जाता है? इन तीनों से मिलकर बन जाता है हमारा नर्वस सिस्टम. क्या बन जाता है? नर्वस सिस्टम. अब इस नर्वस सिस्टम का क्या काम है? पता तो चल गया कि हमारा नर्वस सिस्टम क्या होता है, किन चीजों से मिलकर बनता है. बट व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का हमारी बॉडी में क्या यूज है, क्या रोल है? सो बेटा नर्वस सिस्टम प्लेज अ बिग रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ आवर बॉडी. ठीक है. नर्वस सिस्टम क्या करता है? ये हमारी बॉडी को, हमारे बॉडी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, उसको कोऑर्डिनेट करता है. तो नर्वस सिस्टम प्लेज अ बिग रोल इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. ठीक है. किसमें बिग रोल प्ले करता है? ये करता है हमारी बॉडी को कंट्रोल और हमारी बॉडी के वेरियस पार्ट्स को, वेरियस एक्टिविटीज को, वेरियस फंक्शंस को कोऑर्डिनेट भी करता है, उसमें तालमेल बैठाता है. ठीक है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम इन डिटेल. नर्वस सिस्टम के फंक्शन को एक बार डिस्कस कर लेते हैं डिटेल में. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी रब द बोर्ड. पहले मैं इस बोर्ड को रब कर लूं. ठीक है. सो व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम? विटामिन बी से थोड़ा सा हटके पहले हम नर्वस सिस्टम के फंक्शन को डिस्कस कर ले, बिकॉज दिस इज ऑल्सो इन योर सिलेबस. ये भी आपके सिलेबस में है और आपको पता होना चाहिए कि विटामिन बी की कमी से अगर हमारा नर्वस सिस्टम स्लो हो जाता है तो नर्वस सिस्टम होता क्या है बेसिकली. सो नर्वस सिस्टम आपको मैंने जैसे कि बताया, द ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड आवर नर्व्स मेक द नर्वस सिस्टम. व्हाट इज द रोल ऑफ नर्वस सिस्टम इन आवर बॉडी? सो नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट्स आवर बॉडी पार्ट्स, आवर होल बॉडी बेसिकली. ठीक है.
सो द फर्स्ट फंक्शन ऑफ आवर नर्वस सिस्टम इज, हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम। हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है उसके फंक्शन को डिस्कस करने जा रहे हैं। what is the first function of our nervous system? हमारे नर्वस सिस्टम का पहला फंक्शन क्या है? तो बेटा ये क्या करता है, इट कंट्रोल्स आवर बॉडी मूवमेंट। पहला अगर मैं फंक्शन बात करूं, नर्वस सिस्टम के पहले फंक्शन की बात करूं, तो दैट इज इट कंट्रोल्स आवर बॉडी मूवमेंट्स। ये हमारी बॉडी की और बॉडी के पार्ट्स की मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा है। ये हमारी हैंड की मूवमेंट को कंट्रोल करता है, हमारे लेग्स की मूवमेंट को कंट्रोल करता है। इट कंट्रोल्स आवर जेस्चर्स, आवर पोस्चर्स, आवर बैलेंस ऑफ द बॉडी। ऑल दीज थिंग्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। हमारा नर्वस सिस्टम क्या करता है बेटा, इट कंट्रोल्स दी मूवमेंट ऑफ आवर बॉडी पार्ट। ये हमारे बॉडी पार्ट्स की मूवमेंट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। ये एक और चीज कंट्रोल करता है, इट ऑल्सो कंट्रोल्स द जेस्चर। ये हमारे जेस्चर को भी कंट्रोल करता है, हमारी बॉडी के जो जेस्चर्स होते हैं। ये हमारे पोस्चर को भी कंट्रोल करता है, ठीक है। हमारी बॉडी कौन सी पोजीशन में रहेगी, कौन से पोस्चर शो करेगी, किस टाइम पे कौन सा पोस्चर शो करना है, किस टाइम पे कौन सा जेस्चर शो करना है। सो ऑल दीज जेस्चर्स एंड पोस्चर्स आर कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। और क्या कंट्रोल करता है, इट बैलेंसेस आवर बॉडी पार्ट्स। ये क्या करता है, हमारी बॉडी को बैलेंस रखता है। सपोज आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़े होकर आपको टीच कर रही हूँ, मैं पढ़ा रही हूँ, सो मेरी बॉडी पार्ट बैलेंस्ड है, मैंने अपने आप को बैलेंस्ड रखा हुआ है, ठीक है। माई बॉडी इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, दिस इज ड्यू टू आवर नर्वस सिस्टम। इसको कंट्रोल करने में, मेरी बॉडी को कंट्रोल करने में, मेरी हैंड मूवमेंट में, मेरी लेग मूवमेंट में कौन रोल प्ले कर रहा है, तो रोल इज प्लेड बाय आवर नर्वस सिस्टम इन माय हैंड मूवमेंट, इन माय बॉडी मूवमेंट, ठीक है, इन माय बॉडी पार्ट्स मूवमेंट, इन माय जेस्चर, इन माय पोस्चर। सो ऑल दीज जेस्चर्स, पोस्चर्स, all the other movements are also controlled by our nervous system। और क्या कंट्रोल करता है, ये हमारी बॉडी के बैलेंस को भी मेंटेन रखता है, ठीक है। हम खड़े हुए हैं, हम गिर तो नहीं रहे हैं, ठीक है, हम ठीक तरह से खड़े तो हुए हैं, हमारी बॉडी बैलेंस्ड कंडीशन में तो है। सो दिस बैलेंस ऑफ आवर बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय आवर नर्वस सिस्टम। ये बैलेंस किसके द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा है। नाउ व्हाट इज द अदर फंक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम? नर्वस सिस्टम का और दूसरा फंक्शन क्या है बेटा, इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स। नर्वस सिस्टम और क्या करता है, ये हमारे सेंस ऑर्गन्स को भी क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इट कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन्स। हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं उनको भी ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। आई एम टीचिंग हियर एंड यू आर लिसनिंग मी, यू आर वाचिंग मी, ठीक है, यू आर लिसनिंग द वर्ड्स which I am saying, ठीक है। जो भी मैं चीजें आपको बता रही हूँ वो आप सुन रहे हैं with the help of your sense organ that is named as your ear। आप ईयर की मदद से चीजों को सुन पा रहे हैं। so that ear is what, sense organ, ठीक है। ईयर क्या है, सेंस ऑर्गन। ईयर की मदद से सुनकर और उसे अपने ब्रेन के थ्रू जान पा रहे हैं कि हाँ ये चीजें मैडम बता रही है, विटामिन बी के बारे में मैम बता रही है, नर्वस सिस्टम के बारे में मैम बता रही है। सो यू आर हियरिंग विद द हेल्प ऑफ योर ईयर एंड यू आर अंडरस्टैंडिंग, यू आर लर्निंग विद द हेल्प ऑफ योर ब्रेन। सो बेटा आवर नर्वस सिस्टम ऑल्सो कंट्रोल्स आवर सेंस ऑर्गन। ये हमारे सेंस ऑर्गन को भी क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है। जब मैं बोल रही हूं तो आप सुन रहे हैं, ठीक है, यू आर यूजिंग योर सेंस ऑर्गन, यू आर यूजिंग योर ब्रेन। जब मैं लिख रही हूं बोर्ड पर कुछ भी, यू आर सीइंग, आप देख रहे हैं, यू आर वॉचिंग, ठीक है। सो इन दिस केस यू आर यूजिंग योर आईज। जब भी मैं कोई चीज ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पर लिख रही हूँ, यू आर वॉचिंग दिस थिंग विद द हेल्प ऑफ योर आईज। तो बेटा यहाँ पर भी आपने सेंस ऑर्गन्स का यूज किया, ठीक है। यहाँ पर कौन से सेंस ऑर्गन का यूज कर रहे हैं, आपकी आईज का यूज कर रहे हैं। तो बेटा आईज को, ईयर को, आईज को
स्किन को, अलग अलग जो हमारे सेंस ऑर्गन्स है उनको कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। सपोज मैंने कोई भी सॉल्टी चीज खाई, अब मैं उसका टेस्ट, मैं सपोज मेरी आंखें क्लोज्ड है, मैंने कोई भी चीज खाई, उसका टेस्ट क्या है वो मैं किसके हेल्प से बता सकती हूँ? अपने टंग के हेल्प से बता सकती हूँ। मेरे टंग उस चीज को टेस्ट करेगी एंड माय ब्रेन विल टेल दैट दिस थिंग इज सॉल्टी, दिस थिंग इज सॉर, दिस थिंग इज स्वीट इन टेस्ट। ठीक है, सो विद द हेल्प ऑफ माय सेंस ऑर्गन एंड माय ब्रेन आई विल judge the thing is in which taste. ठीक है, तो my nervous system is also controlling my sense organ like eyes, ear, nose, tongue, etc. skin. ठीक है, समझ आ गई बात? Now next function of our nervous system is what? हमारे नर्वस सिस्टम का अगला फंक्शन क्या है? सो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है बेटा, इट ऑल्सो कंट्रोल्स आवर वॉच। और क्या चीजें ये कंट्रोल करता है? क्या चीजें और कंट्रोल कर रहा है ये? बेटा हमारी जितनी भी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज होती हैं उनको भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा नर्वस सिस्टम। जो नर्वस सिस्टम है दैट आल्सो कंट्रोल्स आवर ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटी। वो एक्टिविटी जिसमें कौन इन्वॉल्व हो रहा है? ब्रेन इन्वॉल्व हो रहा है, प्राइम फंक्शन ब्रेन का है। So the brain related activities are also controlled by our nervous system। जितनी भी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज हैं वो भी किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? These are controlled by our nervous सिस्टम। अब ये कैसे कंट्रोल कर रहा है हमारी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज को? ठीक है, हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो हमारी ब्रेन रिलेटेड एक्टिविटीज को इस प्रकार से कंट्रोल कर रहा है दैट वी कैन लर्न विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, हम अपने ब्रेन की हेल्प से लर्न कर सकते हैं किसी चीज को। वी कैन अंडरस्टैंड समथिंग विद द हेल्प ऑफ आवर ब्रेन। ठीक है, वी कैन कीप द डिफरेंट थिंग्स इन आवर ब्रेन विद द हेल्प ऑफ आवर मेमोरी पावर। हमारी जो मेमोरी है, ठीक है, हमें कोई चीज याद है, कल हमने कौन सी ड्रेस पहनी थी, कल हम कहाँ घूमने गए थे, कल हमने क्या खाया था, ये सारी चीजें हमें क्यों याद है? क्यों याद है? विद द हेल्प ऑफ आवर मेमोरी। दिस मेमोरी इज ऑल्सो स्टोर्ड इन आवर ब्रेन। तो ब्रेन रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनको कौन कंट्रोल करता है? उनको भी हमारा नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। इस प्रकार से लर्निंग, जो चीजें मैं आपको सिखा रही हूँ या फिर जो चीजें आपको अदर टीचर्स ने सिखाया है, आपने उन चीजों को लर्न किया है, सीखा है with the help of your brain। ठीक है, so the आपका nervous system is playing a big role in learning also। your nervous system is playing a big role in your memory। your nervous system is playing a big role in your understanding। ठीक है, किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, किसी चीज को लर्न करना, किसी चीज को रिकॉल करना विद द हेल्प ऑफ योर मेमोरी। ठीक है, 3 दिन पहले आप कहाँ घूमने गए थे, 1 साल पहले आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे, 2 साल पहले आप कौन सी क्लास में पढ़ते थे, आपकी 5th क्लास की क्लास टीचर कौन थी, आपको 4th क्लास में कौन सी क्लास टीचर पढ़ाती थी, कौन सब्जेक्ट टीचर थी। ये सारी चीजें आपको क्यों लर्न है? विद द हेल्प ऑफ योर मेमोरी पावर एंड दैट मेमोरी इज कंट्रोल्ड बाय योर brain and automatically your nervous system because your brain is also a part of your nervous system। ठीक है, ब्रेन के द्वारा ये एक्टिविटीज कंट्रोल की जा रही है एंड ब्रेन किसका पार्ट है? ब्रेन इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। ठीक है, और क्या चीजें कंट्रोल करता है हमारा ब्रेन? हमारी इंटेलिजेंस को भी कंट्रोल करता है, हमारी आईक्यू एबिलिटीज को भी कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन। ठीक है, हम कितने इंटेलिजेंट हैं, हमें कितनी अच्छे से चीजें याद हो जाती हैं, हम कितने परफेक्शन के साथ चीजों को एक्सप्लेन कर पाते हैं, कितनी परफेक्शन से चीजों को हम लर्न कर पाते हैं। सो ऑल दिस थिंग, ऑल दिस इंटेलिजेंस इज कंट्रोल्ड बाय आवर brain which is a part of our nervous system। तो brain related activities are also controlled by our nervous system। ठीक है, तो ये सब तो था आपके नर्वस सिस्टम के बारे में। ये नर्वस सिस्टम मैंने आपको क्यों पढ़ाया? ये नर्वस सिस्टम मैंने आपको इसलिए पढ़ाया ताकि आपको पता रहे कि विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में कौन सी बीमारी हो जाती है। सो विटामिन बी की कमी से हमारे शरीर में एक बीमारी हो जाती है जिसका नाम है बेरी। ठीक है, लेट्स कम टू द टॉपिक नाउ। हमारा टॉपिक क्या था? दैट ड्यू टू द लैक ऑफ विटामिन बी इन आवर फूड वी सफर फ्रॉम अ डिजीज। दैट डिजीज is called as vitamin B। ठीक है, due to the lack of vitamin B in our food, lack of which vitamin? Due to the lack of vitamin
बी। ठीक है, अगर हमारे फूड में विटामिन बी की कमी होगी तो हमें कौन सी डिजीज हो जाएगी, हमें बेरी बेरी डिजीज हो जाएगी। बेरी बेरी नामक डिजीज में क्या होता है, कौन कौन से सिम्टम्स हमारी बॉडी शो करती है। सो आवर नर्वस सिस्टम बिकम्स स्लो इन दिस डिजीज। जितनी भी फंक्शनिंग है हमारी नर्वस सिस्टम की वो कम हो जाती है, स्लो हो जाती है इन केस ऑफ बेरी बेरी डिजीज। ठीक है, बेरी बेरी डिजीज होने पर हमारे सोचने समझने की क्षमता कम हो जाती है, हमारी लर्निंग एबिलिटी कम हो जाती है, हमारी ग्रास्पिंग एबिलिटी कम हो जाती है। ठीक है, हमारे सेंस ऑर्गन और हमारे ब्रेन की फंक्शनिंग के बीच में बैलेंस नहीं बैठ पाता है। एंड व्हाट आर दी अदर सिम्टम्स ऑफ बेरी बेरी, बेटा हमारी मसल्स वीक हो जाती हैं। ठीक है, सो द नेक्स्ट सिम्टम ऑफ बेरी बेरी इज वीकनेस इन दी मसल्स। हमारी जो मसल्स होती हैं वो क्या होनी शुरू हो जाती हैं, वीकनेस हो जाती है हमारी मसल्स में। सो वीकनेस इन मसल्स। ठीक है, दिस इज द थर्ड सिम्टम ऑफ आवर डिजीज कॉज्ड एज बेरी बेरी। ये किस प्रकार की डिजीज का सिम्टम है, बेरी बेरी नामक डिजीज का सिम्टम है। ठीक है, विच इज कॉज्ड ड्यू द लैक ऑफ विटामिन बी इन आवर फूड। तो बेटा जो ये हमारा वीकनेस इन मसल है, जब हमारी मसल्स वीक होंगी तो उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। सो पेन इन मसल्स इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ व्हाट, इज ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ बेरी बेरी। ठीक है, हमारी मसल्स में क्या होने शुरू हो जाता है, पेन होना, दर्द होना शुरू हो जाता है। हमारी मसल्स जब वीक होंगी तो उनमें पेन होना स्टार्ट हो जाएगा। नंबनेस इन मसल्स, दिस इज दी अदर सिम्टम ऑल्सो। ठीक है, अदर सिम्टम क्या है, हमारी मसल्स में नमनेस रहेगी। ठीक है, What is the other symptom of very berry? Berry berry के और दूसरे symptoms क्या हैं? तो other symptom of berry berry is depression, anxiety, confusion, dilemma. ठीक है, these are the other symptoms of berry berry. Berry berry में क्या होता है बेटा, आपको confusing state बनी रहती है, किसी काम को लेकर, किसी चीज को लेकर आप confused अवस्था में रहते हैं कि आपको ये काम करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका क्या रिजल्ट होगा, क्या नहीं होगा, किस प्रकार से इस काम को करना है, आपके माइंड में कंफ्यूजन बनी रहती है। आप एंजाइटी से ग्रस्त हो जाते हैं, आपको एंजाइटी, चिंता होने लग जाती है किसी काम को लेकर। ठीक है, आप बहुत ही ज्यादा इनसिक्योर फील करने लग जाते हैं। और क्या होता है बेटा, आपको डिप्रेशन भी होने लगता है, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, एंजाइटी हो जाती है। ये सारी किसके सिम्टम्स हैं, आपके बेरी बेरी नाम की डिजीज जो होती है, ये सब उनके सिम्टम मैंने आपको बताए हैं। So this was all about the vitamin B.